नहीं मिले कि एक पासों सोनिया गांधी इटली तो आके उन्होंने हक मिल जाता जी जंपल इटली की है, पर जो हिंदुस्तान के लोग पर जो 1947 के साढ़े भरा आए हैं उन्होंने अज तक स्टेट में कोई अधिकार नहीं मिलता है। बाकी बढ़ जाए तो साढ़े अपने भरा विरोध देश के मालिक देश में अपना मसला लड़ रहे हैं तो देशी आगे से बना एकदम उन्हें इंतजाम करना वो भी कितने पहले कुछ घंटे करना बहुत बधाइयाँ खासा के विभाग का बजा के तारी सेवा से हाजिर सानू सेवा का मौका दियो अज तुम दुख की घड़ी चाहे कल परमात्मा करे सुख तब्दील होगी हमारे लोग भी उस समय क्या होगा दहशत के मारे, क्योंकि पिछले 2 महीनों में आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप जो कुछ हिंदुस्तान में मिलेगा जो लोग हिंदुस्तान में एरिया खाली थी जमीनें उनकी खाली थी, हमारे लोग रोड पे बैठ के थोड़ी देर लोग कुछ लोग कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन थी उसकी एडमिशनें जो है हमने खोली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कॉलेजेस और टेक्निकल एजुकेशन है उसमें कहा कि इन लोगों को वहाँ एडमिशन जो है वो दी जाए। माता की भारत माता की श्री लबाराम गांधी श्री लबाराम गांधी श्री लबाराम गांधी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ? ਕੁੜੀ का अच्छा नहीं तो उन्होंने नहीं कहा कि तो उत्थों आए ਹੁਣ ਆਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 47 ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ थे? ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 47 ਦੇ ਅੱਛਾ 47 ਦੇ ਆਏ 47 ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਉਹਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ 2 ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਉਹਲਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਏ।
भाई दो है मेरे वाला और मेरी भरजाई भी ऐसे वाला करना माता भी ऐसे करना जिस उत्थों आया ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ना ब्याज तो किता नहीं ब्याज तो किता नहीं ब्याह कोई 100 साल किता इधर आए उसके बाद फिर 3 लड़कियां मेरिया तो दो लड़के टोकी तो ये काम करना ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਆਖਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਹ ਤਾਂ ਆਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਦੇ ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਬੈਠੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥਾ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਦੇ ਬਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਵਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾ ਆਸੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਤੁਕੇ ਟੋਕੇ ਚੁੱਕੀਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਦੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਖੜਕੁਰਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫਾ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿਰਾਏ ਕੋ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ 47 ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਗਊਕਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਅੱਛਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 5 ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਣੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਆਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਕੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਧਰ ਕਰੋ ਭਾਈ लबाराम गांधी, प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी 1947। लबराम जी आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कार्यक्रम है आपका, क्या करना है आपने? हम वो लोग हैं जो पिछले 64 सालों से जम्मू कश्मीर सरकार के सताए हुए लोग हैं। तो कल ही हमारा जम्मू से पलायन हुआ है दिल्ली के लिए। हम पिछले 64 सालों से ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर का नागरिक अधिकार जो है वो दिया जाए, लेकिन जितनी भी सरकारें आई वो कश्मीर बेसिस थी, उनको हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया। और जब भी बात हमारे सिटीजनशिप राइट की आती है तो वो उनकी तरफ से एक ही इशारा मिलता है कि आप लोग हिंदुस्तान के नागरिक हो,
आप लोगों का जो भी राइट्स है वो हिंदुस्तान में है। जम्मू कश्मीर के में रहते हुए आप लोग हमारे पास एज ए मेहमान हो, एज ए गेस्ट हो, तो जो भी राइट लेना आपको दिल्ली से मिलेगा। तो हम पिछले 64 सालों से लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं और उनकी तरफ से भी हमें बार बार आश्वासन आता है। जो भी सरकार आती है वो यही आश्वासन देती है कि हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो आज पोजीशन ऐसी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। हमारे लोगों के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे जो नौजवान थे वो इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस वगैरह में चले जाते थे, लेकिन आज क्या है कि जो कोटा है वो नौकरियों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी स्टेट वाइज हो गया है। जब स्टेट वाइज कोटे की बात आती है तो चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उसमें भी हमारे बच्चे जो है वो कतार में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास वो जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट राइट नहीं है। तो इतनी बुरी हालत है कि हमारे नौजवान जो हैं बिल्कुल कोई दिहाड़ी लगा के गुजारा कर रहा है। बुजुर्ग जो पहले आर्मी में सर्विस की है उसकी पेंशन पे गुजारा कर रहा है। तो आज दुखी मन को लेकर हम कल जम्मू से निकले हैं और हम प्राइम मिनिस्टर से यही गुहार करने जा रहे हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या कसूर किया है जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, जहां हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। क्या कारण क्या है, किस बात की हमें जो है वो सज़ा दी जा रही है। नहीं, ऐसा ये क्यों है, कब से है? जम्मू कश्मीर में रहना कोई गुनाह तो नहीं है। क्या बैकग्राउंड क्या थी जिसके तहत आपको जो है दिया नहीं गया नागरिकता? गुनाह जो है वो हमारे बुजुर्गों ने किया होगा। गुनाह हमारे बुजुर्गों ने किया होगा, अपनी जानें बचा के वो जम्मू कश्मीर में एंटर हुए। 47 के जो हालात थे वो इतने बदतर थे कि हर एक जो हिंदू कम्युनिटी का आदमी था जो वहाँ था, उनको लाउड स्पीकरों पे धमकियाँ दी गई थी कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन चुका है। और ये लोग हमारे जो बुजुर्ग थे वे अपनी जानें बचा के बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए कि जम्मू कश्मीर ही उनको नहीं दिख पड़ता था। गांधी बात करूँ तो यह अभी जलंधर में आप खड़े हैं, तो जलंधर में ही ऐसे लाखों परिवार हो गए जो विस्थापित होकर आए थे, तो फिर जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्या है कि आपको जो वहाँ पे नागरिकता नहीं? मैं वही तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर एक वो रियासत है जिसको हम कहते हैं, जब बातें चलती है कि जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूटा अंग है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी हुक्मरान है वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर वो हिंदुस्तान का अंग नहीं है। वहाँ का जो झंडा है वो अलग है, वहाँ का जो संविधान है वो अलग है। उसी की सज़ा हमें दे रही है। धारा 370 1950 में लगी थी। हम मानते हैं कि धारा जम्मू 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला है, लेकिन हम उनको ये भी कहते हैं कि हम लोग 47 वाले हैं। धारा 370 जो 1950 में लगी उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन डेलिबरेटली हम लोगों को अगर उससे वंचित रखा जा रहा है तो वो एक सोची समझी साजिश है। मुख्यमंत्री का क्या कहना? मुख्यमंत्री की तरफ से यही इशारा है कि हम करने जा रहे हैं, कब करेंगे वो पता नहीं है। अभी आप कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? दिल्ली में जाकर आपने क्या करना है, फिर क्या कार्रवाई है? कल की जो हमारी तैयारी थी उसमें तो तकरीबन 2000 लोग हम जा रहे हैं। तो दिल्ली हम आज शाम को पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके कल हमारी गुहार है, वहाँ प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में। अगर फिर भी नहीं सुनवाई होगी तो हमने तो ये फैसला किया कि जो परिवार हमारे पीछे रह गए हैं उनको पीछे से गाइडलाइन देके जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी दिल्ली में बुलाया जाए कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार हमें हक नहीं देना चाहती तो हमें हिंदुस्तान में कहीं भी बसाया जाए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हमें सिटीजनशिप राइट्स जो है वो दिया जाए। ये लगा अभी तो 3 दिन का है, लेकिन इसको शायद हम कंटिन्यू करने जाएं। अगर आप अपनी फैमिली के पीछे से बुला लेते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने के लिए, तो वहाँ पे कितने आपके सारे 2000 अब जा रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा? तकरीबन 1.5 लाख तो होंगे तकरीबन।